Hello everyone, welcome to session. So today we'll be discussing concept of relation. Before I start with this session, I hope you guys have watched previous session that was on proportion and variation. If you haven't, make sure you watch that and then come to this. So in proportion and variation, I have discussed one concept that was directly proportional and inversely proportional. And we have done question related to that. Directly proportional and inversely proportional. I have given you examples also and we have done questions also. Directly proportional, like distance is directly proportional to the speed if time is constant. Distance is directly proportional to a time when speed is constant. And whereas inversely proportional, speed is inversely proportional to the time when distance is constant. Fine. So these are the few examples that I have taken. Similarly, similar to this proportionality, there are relations. In relations also, there are direct relation also. There is direct relation and there is inverse relation. So we'll be discussing direct and inverse relation. Let's first understand what is a relation. So in proportion, like D equal to ST, this was the equation. And let's understand how equation of relation made. Relation की equation कैसे बनती? So let's take an example of let's say electricity bill. Let's say example of electricity bill. Electricity bill तुम्हारा कैसे आता है? अगर तुमने देखा हो तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है कि जैसे जो टोटल बिल आता है, टोटल बिल जो आता है उसमें क्या होता है कि अगर सपोज तुम पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते हो, जीरो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, जीरो यूनिट यूज करते हो, स्टिल कुछ ना कुछ बिल आता है. दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड बिल. सो लेट्स से दैट इज रिप्रेजेंटेड विद एफ, दैट इज फिक्स्ड बिल. ठीक है, ये बिल आएगा ही आएगा. टोटल बिल मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, टोटल बिल का इक्वेशन में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल का. तो टोटल बिल का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, अगर तुम मंथ में जीरो यूनिट यूज करते हो, स्टिल यू हैव टू पे सम अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड बिल. और दूसरा होता है वेरिंग बिल. दूसरा होता है वेरिंग बिल, जो वेरी करता रहता है डिपेंडिंग ऑन कितना तुमने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया है, कितने यूनिट तुमने यूज किया. अगर तुमने n यूनिट यूज किया है तो उसके प्रोपोर्शनल, लाइक अगर हर यूनिट का चार्ज लेट से k रुपीज है, उसके प्रोपोर्शनल में आएगा. दिस इज द इक्वेशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे डिसाइड होता है. एक तो है तुम्हारा फिक्स्ड, एक तुम्हारा फिक्स्ड कंपोनेंट दैट इज फिक्स्ड बिल. अदर इज वेरिंग बिल एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू यूज्ड. ठीक है, सो दिस इज, आई होप दिस इज क्लियर. ये के तुम्हारा क्या है कि हर यूनिट का चार्ज कितना. सपोज एक यूनिट का चार्ज 10 रुपीज है एंड द नंबर ऑफ यूनिट जितने यूज करोगे तो तुम्हारा बिल ऐसे डिसाइड होगा कि लाइक अगर सपोज 200 रुपीज फिक्स्ड कॉस्ट है और तुमने मंथ में 100 यूनिट्स यूज की हैं, तो तुम्हारा बिल कितना आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 100 यूनिट्स तुमने यूज की हैं और एक यूनिट का चार्ज है 10 रुपीज, तो योर बिल विल बी 1200 रुपीज. आई होप दिस थिंग इज क्लियर, वेरी सिंपल. Now here you can see these two things are constant. What are constants? Those things that are fixed. Fixed चीजें तुम्हारी constant होती है ना. तो यहाँ पर fixed चीज क्या है? Fixed is your this thing and this thing. So this is constant. So represented like T equal to K1 plus K2n. These two are constants. These two are constant, K1 and K2. ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या होगा. When these two are constants, and let's write two equation. Let's write bill for two different months. So let's say this is bill for January and let's write this is bill for February. So K1 तुम्हारा फिक्स है, K2 भी फिक्स है. नंबर ऑफ यूनिट्स, लाइक सपोज यहाँ पर तुमने जनवरी में NJ यूनिट यूज किए थे, फरवरी में NF यूनिट यूज. इज दिस फाइन? So one thing here, like let me just explain this thing. So this is relation. This type of equation is called relation. जहाँ पर तुम्हारा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर, ये चीज देखो, ये जो T है टोटल बिल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N के नहीं है, नंबर ऑफ यूनिट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बट उसके रिलेशन में है. अगर नंबर ऑफ यूनिट्स तुम इंक्रीज करोगे तो तुम्हारा बिल भी इंक्रीज करेगा, बट दैट इज नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. आई होप दिस थिंग इज क्लियर. So this type of equation is called relation, like D equal to ST, where this is directly proportional, this is directly proportional, where this is not directly proportional, this is called the relation, but this is proportional. There is a constant in between. ये एक प्लस का कॉन्स्टेंट डाला जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होकर दिस इज कॉल्ड द रिलेशन. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा रिलेशन और प्रोपोर्शनल की प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस होता है. तो यू राइट द इक्वेशन. अगर ऐसी इक्वेशन आती है, लाइक कोई और साइन नहीं आता प्लस ऐसी इक्वेशन आती है, तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर एक कांस्टेंट के साथ उस पे लाइक लीनियरली वेरी कर रहा है,
अगर वो इंक्रीज कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज, लाइक इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज, डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर टी तुम्हारा जो टोटल बिल है और नंबर ऑफ यूनिट्स है, इसमें डायरेक्ट रिलेशन है, नॉट प्रोपोर्शनल। फाइन। अच्छा, अब जब ये दो इक्वेशन लिख ली, नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशन, so what I would get, this would cancelled, this would get cancelled, and this is k2 nj minus nf r naught, ये आ जाएगा, this is r naught, this is not, ये हो रहा है, this is happening. Now let's see carefully, यहीं से तुम्हारा सॉल्यूशन निकलेगा, कैसे इक्वेशंस को, कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकते। tj minus tf equals to k2 nj minus nf. So here what you can conclude, यहाँ से क्या conclude कर सकते हैं कि difference in total bill is directly proportional to the difference in number of units used. Is it or not? अब ये देखो, ये वाला इक्वेशन बन गया, अगर इसको मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ, इसको मैं डिफरेंस लिख लेता हूँ, तो देखो ऐसा इक्वेशन बन गया, डी इक्वल टू एस टी। नाउ रिलेशन से हमने कन्वर्ट कर लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Now, difference in total bill is directly proportional to the difference in the number of units are utilized. Is it fine? I think this will get more clear when we will use the examples. जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी कि बेसिकली इसका मतलब क्या है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट्स सी द व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सिमिलर टाइप का इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल देख ले कैसा होगा। तो लाइक इनवर्स रिलेशन, प्रोपोर्शनल तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, इनवर्स रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन की इक्वेशन, लाइक इसकी इक्वेशन क्या होगी, एस इक्वल टू डी अपॉन टी। सो दिस इज एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी व्हेन डी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हारा सिमिलर होगा, लाइक लेट्स से समथिंग, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो लाइक लास्ट वाली इक्वेशन अगर हम लिखें, लास्ट वाली इक्वेशन अगर हम लिखें, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो था इक्वल्स टू एक फिक्स चीज थी, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड K1 प्लस K2, ये आ रहा था हमारा। अच्छा, अब हमें अगर लाइक सपोज इस मंथ का बिल 1200 जैसे आ रहा था और हमने यूनिट्स कितने यूज की थी, 100, तो इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट कितना था, बिल पर यूनिट कितना था, एक यूनिट का हमें चार्ज कितना पड़ रहा था। वैसे तो जो चार्ज दिया हुआ था दैट वाज 10 रुपीज है ना, 10 रुपीज K2 की वैल्यू थी, बट हमारे लिए इफेक्टिवली पर यूनिट चार्ज कितना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सपोज ये कर दे क्वेश्चन, इफेक्टिवली पर यूनिट कितना आ रहा है, वैसे तो दिया हुआ है पर यूनिट 10 रुपीज, बट इफेक्टिवली ये बिल पे करने के बाद इफेक्टिवली देखो कितना आ रहा था, तुमने 100 यूनिट यूज किया था, दैट वाज 12 यूनिट है ना, 12 यूनिट आ रहा था इफेक्टिवली। सिमिलर थिंग, तो उसके लिए क्या करोगे, इसको n से डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो इस इक्वेशन की। सो व्हाट इज दिस, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर यूनिट, एक यूनिट का कितना चार्ज आ रहा है, दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई। तो इसको लिख लेते हैं पर यूनिट, लाइक बिल पर यूनिट, ठीक है, एंड K2 एंड K1 अपॉन। so here you can see this bill per unit is inversely proportional, this bill per unit is inversely proportional to number of units। अब यहाँ पर इनवर्सली नॉट प्रोपोर्शनल रिलेशन, ठीक है, नॉट प्रोपोर्शनल, मैं प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, जहाँ पर बोल दूँ गलत है, ठीक है, दिस इज रिलेशन। हियर यू कैन सी बिल पर यूनिट, BU इज बिल पर यूनिट, बिल पर यूनिट, ये अपने नोटबुक में लिख लेना, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ लिख ले रहा हूँ। बिल पर यूनिट इज इनवर्सली इन इनवर्स रिलेशन विथ नंबर ऑफ यूनिट, लाइक अगर नंबर ऑफ यूनिट्स तुम इंक्रीज करोगे तो ये चीज डिक्रीज करेगी, अगर ये इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करेगी, इसको डिक्रीज करोगे तो ये इंक्रीज करेगी। इसका अगेन सिमिलर इक्वेशन लिख लेते हैं, अगर इसको मैं B1 ले लेता हूँ और इसको n डैश ले लेता हूँ और इसको मैं B2 दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ कि लाइक एक मंथ का इतना चार्ज आया था, दूसरे मंथ में पर यूनिट कितना आ रहा है, जैसे जनवरी और फरवरी सेम चीज़ है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स, यू सब्ट्रैक्ट दीज टू थिंग्स, this thing will come, this thing will come, again we have reached to the same equation, again we have reached to the same conclusion that
difference in unit per bill is inversely proportional to the difference in not in inversely proportional to the difference in number of units. अच्छा ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है, तो डबल डैश ऐसे. तो हियर यू कैन सी, अगर इसको हटाएंगे कांस्टेंट को, सो दिस इज प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा. सो डिफरेंस इन बिल पर यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड. ओके फाइन. तो अब हम क्वेश्चंस को करेंगे एंड क्वेश्चंस, ये इक्वेशन हम एक बार बना लेंगे, देन क्वेश्चंस को हम प्रोपोर्शनलिटी की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो दिस रिलेशन इज हियर बिल पर यूनिट इज इनवर्सली रिलेशन इन इनवर्स रिलेशन विद नंबर ऑफ यूनिट्स यूज. आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि लाइक डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इसमें डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या है और इनवर्स रिलेशन क्या है. रिलेशन में एक और कांस्टेंट आ जाएगा प्लस के साथ, ठीक है. प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट होगा, कोई बीच में नहीं होगा, ऐसे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. अगर रिलेशन है तो रिलेशन का, अगर रिलेशन दिया हुआ है ना, रिलेशन है तो तुम रिलेशन को सब्ट्रैक्ट अगर कर दोगे तो तुम्हें डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ऐसा मिल जाएगा. लाइक इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो इनवर्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट होगा तो डायरेक्ट मिल जाएगा. अब थ्योरी थोड़ी बहुत समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन से पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है. ट्राई टू ग्रैस्प एज मच एज थ्योरी. अगर ये लाइक 30% भी समझ जाओगे तो पूरी क्लैरिटी एग्जाम्पल से आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्ट. दिस इज द वेरी वेरी फास्ट अप्रोच इफ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अदरवाइज तुम कैसे सॉल्व करोगे मैं वो भी तुम्हें बताऊंगा. You have to make the two equations and solve, then you will get the solution. So let's see. Total boarding expenses of a boarding house are partially fixed and partially varying. So these type of the questions fall in the category of relation. इससे तुम्हें रिलेशन की इक्वेशन मिलेगी जहां पर भी तुम्हें पार्सली फिक्स्ड और पार्सली वेरिंग की बात हो जाए, यू गॉट टू नो दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट रिलेशन, ठीक है. रिलेशन की बात हो रही है एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशन, हाउ टू अप्रोच, आई एम गोना शो यू. तो देखो, इसको सॉल्व करने का पहले मैं तुम्हें बेसिक तरीका बताता हूँ कि कैसे तुम करोगे इक्वेशन वगैरह बना के, एंड देन विल सी द जो भी हमने सीखा है ये अप्रोच, ठीक है. तो लाइक टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस की अगर हम इक्वेशन लिखें, दैट इज पार्सली फिक्स्ड अमाउंट कुछ है एंड वेरिंग लीनियरली विद द नंबर ऑफ बोर्डर्स. नंबर ऑफ बोर्डर के साथ, सो लेट्स से नंबर ऑफ बोर्डर्स के साथ वेरी कर रही है. कैसे? द टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस इज 1200. टोटल बोर्डिंग एक्सपेंसेस इज 1200 व्हेन देयर आर, ये तो फिक्स है, व्हेन देयर आर 40 बोर्डर्स. सो 40 बोर्डर्स हैं, तो के ले लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वो एन कंफ्यूज कर. तो लाइक के बोर्डर्स, तो कितना 40 बोर्डर्स पे ये एक्सपेंस आ रहा है. और दूसरा इक्वेशन 1500 प्लस 55. अब ये देखो क्या है, दीज आर द टू इक्वेशन. ये दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे एफ की वैल्यू और बी की वैल्यू मिल जाएगी. एंड वी हैव टू फाइंड टोटल बोर्डिंग एक्सपेंस व्हेन देयर आर 75 बॉर्डर्स. यहाँ पर एफ और बी की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा. दिस इज अ वन वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब एग्जाम में हो सकता है डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो, यहाँ पर भी मे बी तुम्हें कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी. लेट्स सी अदर वे राउंड. अब देखते हैं जो अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया है ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके हाउ इजिली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. यू डोंट नीड टू मेक इक्वेशन, यू डोंट नीड टू सॉल्व एनी इक्वेशन, you can easily solve this question. Let's see the approach. So what we'll do, like write this way. First step I would recommend, so that you don't have any confusion, write the equation. पहले तो ये इक्वेशन लिख लो कि इक्वेशन कैसी बन रही है. तुम्हारी इक्वेशन कैसी बन रही है, टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू फिक्स्ड प्लस ये इक्वेशन बन रही है. Once you know this equation, so here you can easily say that total expenses in direct relation with the number of borders, ये दोनों फिक्स हैं. These are the fixed. ये दोनों फिक्स हैं, ग्रीन कलर वाले तुम्हें फिक्स. एफ एंड के इज फिक्स्ड. तो अब तुम्हें पता है कि लाइक इसका डिफरेंस, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा. तो देखते हैं, अगर डायरेक्ट रिलेशन है, अगर किसी क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, इसके बीच डायरेक्ट रिलेशन है, यू कैन सी, तो उनका डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. तो देखते हैं, 1200 इज डायरेक्टली लाइक दिस थिंग, ऐसे लिख लो, एंड 1500. तो ये टोटल एक्सपेंस है एंड ये कितना बॉर्डर्स है, कितने स्टूडेंट्स आर बॉर्डर्स.
देन 75 के लिए तुम्हें आंसर निकालना है. दिस यू हैव टू फाइंड दिस थिंग. नाउ सी हाउ आई विल सॉल्व. जैसे तुमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे सॉल्व करेंगे. अब देखो कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 15. ये कितना इंक्रीज कर रहे हैं, 300. तो यू कैन से दिस 15 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 300. ठीक है. अगर ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इक्वेशन मैंने कल क्या बताई थी, ये चीज हमने किया था. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो मैंने बोला था इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग के राइट दिस इक्वेशन, है ना. ये कैंसिल हो जाएगा. अगर टी इक्वल्स टू के बी है ना, तो लाइक दो इक्वेशन लिख लो, T1/T2 के B1 के B2. ये कॉमन के कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो इस इक्वेशन में नाउ यू नो दिस थिंग, ये कितना है तुम्हारा 20. तो दिस इज B1, डिफरेंस है बेसिकली, नॉट डायरेक्टली ना. तो ये तुम्हारा ऐसे प्रोपोर्शन इसमें है और टी और बी में रिलेशन. तो ये डिफरेंस वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करो. T1 कितना है 15 और डेल्टा B1 कितना है 300 एंड डेल्टा T2 कितना है 20 और डेल्टा B2 ये निकालना है. ये बीच का डिफरेंस कितना, x निकल आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेट इट पुट इट x एंड दिस वाज 20. so 15 20 and that is 400. So this is x equal to 400. So 400 you need to add here, to that is 1900. That is 1900. तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया 1900. अब तुम इक्वेशन बना के देख लेना, सॉल्व कर लेना, 1900 ही आंसर आ रहा होगा. आई होप समझ में. अभी एक और एग्जांपल करेंगे और क्लैरिटी. The electricity bill of a certain establishment is partially fixed. Again electricity bill है partially fixed and partially varying with the number of units used, partially varying with the number of units consumed. When in a certain month 540 units are consumed, the bill is, so 540 units are consumed 1800. और जब ये इंक्रीज करें तो डायरेक्ट रिलेशन है ना, डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा. अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो इनका डिफरेंस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है. तो 540 यूनिट्स के लिए 1800 बिल आ रहा है. 620 यूनिट के लिए 2040 बिल आ रहा है. यू हैव टू फाइंड बिल फॉर 500. यू हैव टू फाइंड बिल फॉर 500 यूनिट. तो दिस इज हाउ मच, ये कितने का डिक्रीज है, ये इंक्रीज कितने का है, लाइक 80 का इंक्रीज. और यहां पर कितने का इंक्रीज है, 240 का. तब देखो ये भी करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे इक्वेशन लिख के जैसे मैंने किया था लास्ट वाले में 80, ये कितने का डिक्रीज है, अगेन 80 का डिक्रीज, 80 का डिक्रीज है, नॉट 80, 120 का डिक्रीज. देखो चाहो तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो. ठीक है. यहाँ से करोगे तो थोड़ा आसान, आई थिंक 40 का डिक्रीज है, 40 का डिक्रीज है, 40 का डिक्रीज है. तो 40 के डिक्रीज के लिए, 40 के डिक्रीज के लिए यहाँ से अगर तुम इसको यहाँ से कंपेयर करो तो यहाँ से कंपेयर करें कितना डिक्रीज आएगा, x 83 120 120 120 का डिक्रीज आएगा. तो 120 डेट इज 1680 1680 इज द आंसर. ठीक है. अब ये करने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पर कैसे कर लोगे, ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें एग्जैक्टली दिख जाए और तुम समझ पाओ. वैसे तो कैसे करोगे, 83 जा, देखो डायरेक्टली यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो 3 का आ रहा है, मल्टीपल 3 का मल्टीपल आ रहा है 80 इंटू 3. तो यहाँ पर 40 है, 40 इंटू 3 120. तो कितना सब्ट्रैक्ट करोगे 120. आई होप दिस इज क्लियर. यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग, ये लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यहाँ पर देखो 80 इंटू 3 आ रहा है, यहाँ पर भी वापस देख लो, यहाँ पर कितना आ रहा था 15 इंटू 20 300 आ रहा था. तो 20 इंटू 20 400 ऑटोमेटिक आएगा. तो उतना ऐड कर दो. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि ये देखो -40 है ना, तो हेयर ऑल्सो यू नीड टू डू -120 डेट इज 1680 इज द आंसर. ये गलती मत कर देना कि 120 ऐड कर दिया. ठीक है. इसको ध्यान रखना है कि तुम डिक्रीज करो या इंक्रीज करो. तो दिस वी हैव डन द क्वेश्चंस ऑफ दैट वर रिलेटेड टू डायरेक्ट रिलेशन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू इनवर्स रिलेशन. So total boarding expenses of a boarding house are partially fixed and partially varying linearly with the number of boarders. Average expense. तो अभी तक क्या दिया हुआ था, टोटल एक्सपेंस. अभी तक क्या हो रहा था कि टोटल एक्सपेंस था तो वो इंक्रीज कर रहा था अगर नंबर ऑफ बोर्डर्स इंक्रीज कर रहे थे, एंड दैट वाज डिक्रीजिंग इफ द नंबर ऑफ बोर्डर्स वर डिक्रीजिंग. बट यहाँ पर क्या है, एवरेज एक्सपेंस. एंड एवरेज एक्सपेंस इनवर्स रिलेशन में कैसे,
अब यहाँ पर देखो 700 है अगर 25 बॉर्डर्स है और 600 है अगर 50 बॉर्डर। तो बेसिकली एक कॉमन सेंस है कि लाइक एवरेज एक्सपेंस विल डिक्रीज अगर नंबर ऑफ बॉर्डर ज्यादा होंगे, एवरेज expenses will increase per person, average expenses basically per person, that will increase if number of borders will. So this is the inverse relation. Let's see, like 700, what is the average expense per border when there are 100 borders? So total equation again equation क्या होता है तुम्हारा, total expenses partially fixed है, partially fixed है, partially varying है, partially varying है linearly with the time. So let's say that variable is v and number of. So if you divide total expense by number of borders, you will get the average expenses. This is average expense, and nn get cancelled and this constant will remain constant. Now, if you write equation like for n1 number of borders, average expense is a1. So for n2 borders, average expense is n2, a2, a2. So these are the two equations. Now, if you subtract these two equations, or if you subtract these two equations, or if you subtract this, same we have done, like similar thing we have done, the direct relation. So this is a relation. Now I am trying to convert into proportion so that our question become easy. So I'm just removing this, so it cancelled. A1 minus A2, F N1, F N2. This is the equation. V cancel हो जाएगा तुम्हारा because constant है और same है, F upon N. Now further write this equation. This is difference and F N1 N2, N2 minus N1. This is the proportionality sign. Proportionality sign. If we remove the constant हटा देंगे तो ये इक्वेशन में मिलेगा. So now we will use this equation. We'll use this equation को यूज कर लें या फिर इसको इस प्रोपोर्शनल को यूज करेंगे टू सॉल्व द क्वेश्चन. Solve the, we'll be using. So now let's see how we'll approach this question using. So average expense per border is 700. If there are 25 borders, agar for a borders is 25, then average expense is 7. And when there are 50 borders, this expense 600. Expense is 600. So this is decreasing by 100, and this is increasing by 25. So average expense number of borders is 100. So we need to find this thing. तो हमें ये फाइंड करना, ये फाइंड करना. सो लेट्स से दिस इज दिस जो यहाँ पर चेंज आएगा डेट इज एक्स, कि हमें एवरेज में सिर्फ चेंज देखना है. सो व्हेन दिस इज 100 एंड दिस इज एक्स, मैंने लाइक A1 A2 के लिए लिखा दिस डिफरेंस डिवाइडेड बाय बेसिकली लिखा दो. So this is like N1, this is like N2, like N. So this is ये दोनों का डिफरेंस जो है डेट इज A1, एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है डेट इज एक्स इन A1 A2. एंड अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाएगा है, एंड दिस इज 1 अपॉन N1 माइनस N, एंड दिस इज 1 अपॉन N2 माइनस N. आई होप ये बात समझ में. नाउ दिस इज 100 अपॉन x, एंड दिस इज N1 N2, so that is 25, 50 minus 25 is the 100 minus 50, 100 into upon this get cancelled.
it cancelled, this get, and we have get x का वैल्यू, x का वैल्यू 50 आ गया, x का वैल्यू जो 50 आया, x का वैल्यू 50 आया, तो देखो नंबर ऑफ बॉर्डर्स इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव आ जाता, x का वैल्यू ऐसे देखो, x का वैल्यू यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज डिक्रीज करेगा, तो दैट इज -50, सो आंसर विल बी 550। एक और क्वेश्चन कर, द एक्सपेंसेस ऑफ अ हॉस्टल आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल varying with the number of occupants. Similar type of question. There are 20 occupant, 5 occupants. If there are 5 more, right? There are 20 occupants, 650 per month. If there are 5 more, that is 20. Down by 50, so that is 600. How many occupants were there if this was 500? अगर ये 500. So let's take it x, तो x assume कर, and this difference is 50 and this difference is 100. तो कैसे इक्वेशन लिखेंगे, 50/100, 50/100, अब 50 से रिलेटेड ये है, सो दैट इज 1/20, 20 इंटू 25 आएगा, 20 और 25 -20, दैट इज यहाँ पर इससे रिलेटेड आएगा, सो दैट इज 25 इंटू एक्स एंड एक्स मैन, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ ऑक्यूमेंट इंक्रीज किया, x -20, इट्स x मैन, x मैन 20, this is it to x तुम्हारा आ जाएगा, रहेगा, वैल्यू आ जाएगी। तो देखो लाइक पहले में तुम्हें समझने में, एक बार तुम समझ जाओगे तो डायरेक्टली यू कैन राइट लाइक दिस, कैन राइट लाइक दिस, है ना, डायरेक्टली ऐसे लिख। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल इज पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरीज डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ बॉर्डर्स। व्हेन देयर आर 400 बॉर्डर्स द कॉस्ट पर हेड इज दिस। So let's write similar type of thing. Number of borders, average number of borders is cost per head is, there are 500, 800 borders. Okay, so this is decreased by, so again एक, अच्छा देखो जब ये चीज़ तुम्हें निकालनी होगी, एवरेज निकालना होगा, जब देखो तुम्हें एवरेज निकालना होगा देन ये डिफरेंस लो, डोंट टेक दिस, इसको लोगे तो एक चीज़ बढ़ जाएगी, है ना, ठीक। और जब इसको लेना होगा नंबर ऑफ ऑक्यूमेंट को, तो इसको एक्स लो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ये निकालना है, तो आई विल नॉट टेक कि लाइक इसको एक्स एज्यूम नहीं करूँगा, इसको एक्स एज्यूम करूँगा, देन आई हैव टू राइट 100 माइनस एक्स। ये तो मैं आई होप समझ में आ रहा होगा क्या, अदरवाइज ट्राई कर लेना इसको, बट आई विल टेक दिस डिफरेंस इज एक्स। नाउ इफ आई राइट द इक्वेशन, दिस इज 20 x, and with respect to this 20 there is 500, 400, or 500 minus 400, that is 100, and for this x के लिए क्या है, 800 into 500,
500 520 x 100 into 100 800 or and 300 into 4 300 into 4. So this is 10 30 तो 30 आ जाएगा. x का वैल्यू 30 x का वैल्यू 30 है. दैट मीन्स ये डिक्रीज करेगा बिकॉज ये इंक्रीज किया तो ये 70 है. तो कॉस्ट पर हेड विल बी 70. I hope this is clear. So like these were the important thing, like is the related question and this is the best method to solve. काफी फास्ट सॉल्व कर पाओगे एज कंपेयर टू मेकिंग द इक्वेशन. मेक श्योर you join the Telegram channel and join the group for discussion of the question. Subscribe to this YouTube channel. Also share with your friends. So that's it for today. Let's see the next.